आप घड़ी ना देखें कि लोगों ने मुझे कहा कि आप जब आएँगे तभी शुरू होगा। May I request Dr. Joshi to present Dr. Ahmed with a bouquet of flowers? श्री रविशंकर से आग्रह है कि आप डॉक्टर अहमद का वेलकम करें। Good evening, ladies and gentlemen, dignitaries on the dais, Professor Ishtiaq Ahmed, Dr. Ravi Chopra, Shri S.K. Das, Chairman of the Board of Governing Body of Doon Library and Research Center, Professor Joshi, and all dear friends here. At the outset, I would like to welcome Professor Ishtiaq Ahmed. So, warm welcome to you, sir. You can see it's a house full. And those who could not be seated here are seated in the annex seat there at the entrance. I think we are in for a vibrant discussion. So I'll not take too much time. And while doing this warm welcome protocols, I will once again say that we welcome you in our midst. Thank you. Dr. Das, Dr. Das. Yeah, you can speak from here, but just 5 minutes, huh? We are short of time, so sirf 5 minutes. Hmm? हाँ, हाँ, नहीं है. Friends, this is indeed a great pleasure and privilege to welcome Dr. Ishtiaq Ahmed. Uh, Also to welcome him here in this wonderful institution, which has been nurtured faithfully by Dr. B.K. Joshi, our former director and now advisor. He advises us on not only the library, but on every literary and cultural and other aspects of life in Dehradun. He is, I would say, the soul of this library. So I must really compliment him, hand for him. In spite of his health condition, you can see that he's taken all the trouble to be here today. Thank you very much, Dr. Joshi. Uh, Ravi Shankar and I have worked, he's the director of the library now, worked together for a number of years. And we were part of Uttar Pradesh, the state of Uttar Pradesh. And now, when the state was formed, we came here. And with lots of dreams of founding a vibrant state and so on. I will not dwell too much on that. The reason I wanted to, this is only a preface for welcoming Dr. Ishtiaq Ahmed, who through his podcast, actually I saw him only through his YouTube podcast, and then saw the amazing extent that it reached out to people all over the world. I mean, he is heard by people from from Europe and America, from Canada, from all over India and Pakistan. He has so many followers. And then I started reading his books. And so far I have read 4 of your books. Not the others because they are not available. Yeah. But I will soon get hold of the others.
He's written three very, very good books, which are, I would say, a trilogy. One is the Punjab, bloodied, partitioned, and cleansed. This is about the partition of India, northern India, into East Punjab and West Punjab, which became Pakistan. We are not talking about Bengal now, because that's another story. And he's writing about the partition of Bengal in due course. Now, how has Dr. Ishtiaq Ahmed got into this history of? Uh, he's not a historian. He's a professor of political science, but he has so much experience uh, traveling and lecturing in various universities across the world. He is also connected with the National University of Singapore in the Lee Kuan Yew Center for Governance, and of course, Professor Emeritus in Stockholm. But his initial education was in Lahore, where he went to Forman Christian College, and after which he went taught for a little while, and then went to do his higher studies in Stockholm University. And since before coming here, I must tell you that he's already traveled for 9 weeks, 9 weeks in Pakistan. So he went to Pakistan, giving lectures all over the at 28, 27 public lectures in Pakistan, and he's come here. And I'm told, of course, I have been following him through his podcast. So it seems the warmth and geniality in that across the border there is no less than what it is here. And here it's amazing the number of people who respond to him and listen to his various talks. Uh, I would call him, Jinnah was Mr. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was called the ambassador in his initial phase of Hindu-Muslim amity. I think today Dr. Ishtiaq Ahmed may be called the ambassador of India-Pakistan amity. I mean, he's really spent so much time going all over the country giving lectures. But the books that he has written, I mean, many of them we managed to get hold of them. They are available on the table outside. If those who want to read them, Dr. Ishtiaq Ahmed would be available after this program to sign them, and you may interview him or talk to him. But the stories that he writes about now, the book on Pakistan, the partition of North India, northwestern India into Pakistan and Punjab and the Indian Punjab. India in the north, the portion that got partitioned is basically East Punjab, and that's 1/3 of the whole Punjab, which is a very big region. In addition to that, there is Sindh, there is Khyber Pakhtunkhwa, there is Balochistan. So Pakistan is a very, very big country. I mean, we often forget that even after the division of Pakistan into Bangladesh and India, Pakistan is still a big country with 220 million people. So that's not a small country. I mean, it would be one of the most dense, populated countries in the world. I think number four or five, sixth in the world. So today Pakistan is undergoing a financial crisis, but we wish them all the best. We hope they will soon recover, and I would like to assure Dr. Ahmed that really heartrending how people have been torn apart by partition, but they've healed wounds. But there are also stories, warming stories of people who were affected by partition but did not allow them. I was telling him on the way that there is the case of Dr. Himmat Singh Sinha. It's a very strange name. Himmat Singh Sinha. He's a philosopher. He is based in Kurukshetra. And this professor, he's 96 years old. He has his own YouTube channel,
and he regularly gives talk, even at 96. And he was mentioning this. Acha, he passed away? Acha, you have been following it. He was a wonderful man. Oh, wonderful. I'm so sorry to hear this, but he was wonderful. You see, he found a small Muslim girl who was left behind at the time of partition. The parents left, obviously, to go to Pakistan, and she, in the hurry, they could not find her, and she was left behind. And she was a girl in the neighborhood. So Dr. Sinha adopted this child, and knowing that she was a Muslim girl, brought her up. Although he was a caste Hindu, but he brought her up as a Muslim, educated her in a Muslim school, taught her the Muslim language. She became a professor of Urdu in the college there. And when Dr. Sinha's wife became very ill, and he couldn't arrange to look after her, and he was already in his 90s, this girl, this young little girl who was now quite a grown woman, she said, "Uncle, I will come and take care of her." And she nursed his wife till she died. So these are amazing stories of how much goodwill there was among communities before the poison of communalism tore this country apart. Uh, Another point, because one of our most distinguished public intellectuals, Ashish Nandi, who's also a clinical psychologist. Now he spent about 40 years studying the effect of partition violence on partition. Partition violence is one of his most important fields of study. And then he mentioned in one of his talks that unlike the Holocaust in Europe and the German Holocaust and the way it affected people, but there people were brutally murdered. Here also people were brutally murdered on both sides, but uh, those who were saved. Now, if you compare the amount, the number of the percentage of people who were saved by on the other side by uh, various people, he said 40% of the people who were helped to escape and saved were people from the other community. That means if a Hindu was affected, the Muslims would come and save in some way, try and secretly save the Hindu family. And the same was true of the other side. That if the Muslim was affected, the Hindu would save them. And 40% of such cases of people who escaped the partition violence were people from the other faith. Now, he said when you compare it with Germany and with Poland and with other Eastern European nations, the percentage is not more than 4 or 5%. So, which means the subject that Dr. Ravi Chopra would ponder over, that ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में वो इंसानियत जो है वो कहीं और उसका प्रभाव नहीं दिखाई देता है. So I will not dwell further. I think we'll wait for, now pass on the mic to Dr. Ishtiaq Ahmed, and we are all awaiting to hear his talk and the pearls of wisdom that he will give us. So may I request you now to, would you like to speak from here? Maybe I can come there, Adi. So आप तो प्रोफेसर हैं. हाँ, तो मैं बोलता हूँ. ठीक ठीक, अभी 2 मिनट. और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्रोफेसर अहमद को कुछ भेंट, और मैं आग्रह करूंगा
ये नेटल शॉल है क्या? हाँ, अच्छा। ये कंडाली का शॉल है। मैं उत्तराखंड इंसानियत मंच की ओर से कमला पंत जी से आग्रह करता हूँ। आपको गांधी की याद दिलाते रहेंगे। अब हम लोग मुख्य उस पे आते हैं। हमारे पास 1 डेढ़ घंटे का समय है, और जिसमें या सवा घंटे 1.5 घंटे के बीच का समय है। आप 45 मिनट से आगे पीछे थोड़ा ऊपर करेंगे, और उसके बाद हम Q&A लेंगे। आधा घंटा Q&A के लिए होगा, और उससे पहले आधा घंटे या 45 मिनट। आप थके हुए हैं? नहीं। और आपसे एक निवेदन ये है कि आप हिंदी में और हिंदुस्तानी में, उर्दू में, उर्दू जुबान में बात करेंगे। ठीक। थैंक यू। ओवर टू यू एंड रवि चोपड़ा। अच्छा। हाँ, पंजाबी में भी कोई बात। सुजीत दास साहब, बाकी जो यहाँ पे हमारे कुलीग हैं, यहाँ हमारे दोस्त कई मुझे नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे संजीव चोपड़ा जी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, आदाब, नमस्ते, गुड इवनिंग। देहरादून मेरे लिए एक मेरी ज़िंदगी में कुछ मुकाम जो हैं उनका बहुत असर है। उसमें देहरादून भी है, क्योंकि मेरी जिन्ना की जो किताब थी, जिन्ना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स, रोल इन हिस्ट्री, उसको यहाँ वैली ऑफ वर्ड्स ने अपने कल्चरल और लिटरेरी जो सोसाइटी है, उसने 2021 में बेस्ट इंग्लिश नॉन फिक्शन बुक का अवार्ड दिया। तो यहाँ पे आना, आप आपका मुझे यहाँ बुला लेना, ये मेरे पे दुगना आपने एहसान और मेरे साथ प्यार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर दैट वेरी वेरी काइंड इनविटेशन दिस टाइम एंड द अवार्ड अर्लियर। 1 घंटे के अंदर किस किस्म की कहानी आपके सामने पेश करूं, सिवाय इसके कि पंजाब के ऊपर जो मैंने किताब लिखी, अगर लोग समझते हैं कि ये जिन्ना वाली किताब जो है, ये क्योंकि पंजाबी च कहते ने बुरे दे घर तक जाना, कि व्हेन यू गो टू द वेरी निटी ग्रिटी ऑफ इट, तो क्योंकि वहाँ पे इस लेवल पे मैंने जो हुआ और उनका जो पॉलिटिकल किरदार था, तो उसमें दुनिया में बड़ा चर्चा हुआ, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में। और लेकिन जिस किताब ने मुझे मेरी अपनी इंसानियत को जिंदा रखने में, उसमें यकीन रखने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है, वो थी द पंजाब ब्लडीड partitioned and cleansed, unraveling the 1947 tragedy through secret British reports and first person accounts. इस किताब के लिखने की वजह ये थी कि बचपन से हमारे घर में इसका पार्टीशन का जिक्र बार बार होता था। मेरी पैदाइश 24 फरवरी 1947 की है, 57/112 टेम्पल रोड। मैं उसका नाम नंबर इसलिए बताता हूँ बिकॉज दैट हाउस इज नो मोर, लेकिन मेरी मेमोरी में दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट।
तो वहाँ पे 12 अगस्त को मेरी जो माता जी हैं, मेरी मदर, वो कहते हैं कि दिन के 10 बजे वो बाहर देख रही थी, वो क्या कहते हैं, बारी में, विंडो से। तो उनके ये अपना राइट हैंड पे जो उस इलाके के हमारे मुजंग के इलाके के जो बदमाश थे, वो इकट्ठे हुए हुए थे। उस जमाने में लाहौर में आगे लग रही थी, लोग टीम बना के लूटने जाते थे, हिंदुओं के मोहल्लों पे मुसलमान, मुसलमानों के मोहल्लों पे ये दूसरे। तो ये बड़े बुरे दिन थे। उन्होंने देखा ये सारे इकट्ठे हैं, यहाँ पे कुछ होने वाला है। इतनी देर में ये लेफ्ट हैंड से एक सरदार जी आए अपनी मोटरसाइकिल पे, और इन गुंडों ने कोशिश की कि उनको पकड़ा जाए और मारा जाए, लेकिन उन्होंने ही टुक आउट हिज गन एंड फायर्ड इन द एयर, तो वो सारे तितर बितर हो गए। अम्मी जी कहती हैं कि मैं देखती रही, मेरी सेंस थी कि यहाँ पे समथिंग हॉरिफिक इज गोइंग टू हैपन। कोई 20 मिनट बाद उसी तरफ से लेफ्ट हैंड से एक सरदार जी आए, एक पुरानी दकियानूसी वॉर्न आउट डिंजी अपनी बाइसिकल पे, और वो कारपेंटर थे, और दिन का जो खाना होता है वो बांध के पोटली में उन्होंने लगाया हुआ था। उन्हें कोई खबर नहीं थी कि ये हिंदुस्तान तकसीम हो रहा है और यहाँ पे अब उनकी कोई जगह नहीं है। वो जब इनके करीब आए तो इन्हीं गुंडों ने उन्हें गिरा के बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। और वो ट्रॉमा मेरी अम्मी का जो है उनके साथ ही रहा। उनकी वफात फरवरी 1990 में स्टॉकहोम में हुई, जहां मैं रहता था। लेकिन आखिर तक वो उस एक ट्रॉमा को कभी उससे रिकवर नहीं कर सकी। एक बिल्कुल इसी तरह हमारे घर के सामने, ऊपर घर थे, नीचे थी दुकानें। तो एक दुकान से शाम के वक्त मुझे याद है, एक बंदा निकलता था और सारी दुनिया को गालियां देनी शुरू कर देता था। और जब वो दरवाज़ा बंद कर लेता था तो उस इलाके के जो शैतान बच्चे हैं वो आके दरवाज़ा खटखटाना उसका, और कहना, लाला चुरंजी लाल, लाला चुरंजी लाल। वो फिर दरवाज़ा खोल के तो सबको गालियां देता था। सो ये हर रोज़ का एक सीन था जो मैं भी देख रहा था। 1953 में पाकिस्तान में वो कम्युनल राइट्स हुए, सेक्टेरियन राइट्स। एक हमारा सेक्ट है जो अब गैर मुस्लिम करार दे दिया गया है, अहमदियों का या कादियानियों का, और बाकी मुसलमानों का झगड़ा हुआ और मार्शल लॉ लगी। तो मार्शल लॉ की वजह से हर वक्त ये ट्रक पे फौजी आते थे, ऐसे गन्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द विंडोज। तो एक दिन जब वो शाम को आए तो दिस मैन ओपन द डोर, और वही गालियां जो उसे आदत थी देने की, उसने देनी शुरू कर दी। तो ये जो फौजी हैं वो तो उसे मारने लगे थे। वक्त बिल्कुल उसी टाइम पे कुछ लोगों ने जाके प्लीड किया कि देखें, इसके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई है कि इसका जो है ना मेंटल बैलेंस, वो अब नहीं रहा। कहा जाता है कि वो ये हरियाणा के किसी इलाके का मुसलमान था। एक्चुअल उसका नाम था लाल दीन या लाल मोहम्मद। उसके घर जब एक बेटा पैदा हुआ तो उसकी बीवी बच्चे की पैदाइश के साथ ही उसकी डेथ हो गई। उस बच्चे को उसने पाला था, और जब वो 15-16 साल का था तो यही 47 के राइट्स हुए, और इस चुरंजी लाल, लाल दीन की आंखों के सामने उसे कत्ल कर दिया गया। तो वो उस सारी दुनिया से नफरत करता था। तो मेरे लिए ये दोनों किस्म के इंसिडेंट, एक सरदार जी के साथ, एक मुसलमान के साथ,
तो लगता था कि कहीं ना कहीं इस ट्रेजेडी की भी स्टोरी बतानी चाहिए। बड़े होते हुए मैंने फिर मंटो को पढ़ा, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, और तो और रामानंद सागर का बहुत बड़ा एक नॉवल है, कभी मिले तो पढ़ें आप, और इंसान मर गया। और हमारी तरफ जो राइट विंग के बाद में राइटर्स बने, अशफाक अहमद का गडरिया, जिसमें वो अपने एक हिंदू टीचर की बहुत तारीफ करता है, और कुदरतुल्लाह शहाब जो इनके सबके गुरु बने, उनकी सबसे बड़ी जो फिक्शन में काम है वो पार्टीशन की बैकग्राउंड पे, और उसमें इंसानियत के साथ जो जुल्म हुआ वो सब ने बिल्कुल हकीकत पसंदी के साथ पेश किया। लेकिन जब एक एकेडमिकली किसी चीज को आप देखते हैं तो वहां लगा कि रिसर्च का वो कोई टेम्पलेट नहीं है, वेयर टू स्टार्ट डूइंग द रिसर्च ऑन पंजाब। होता क्या था कि उससे पहले जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियन है, जिनको आदत है आर्काइवल मटेरियल के ऊपर ही इन्हिसार करने की, हाँ, दे रिलाई जस्ट ऑन दोज सोर्सेज, तो वो तो 14 अगस्त के बाद पंजाब के गवर्नर्स की जो फोर्ट नाइटली यानी 2 हफ्ते के बाद वो सीक्रेट रिपोर्ट्स लिखते थे, दे केम टू एन एंड। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी रिपोर्ट्स होती थी, वो भी 14 अगस्त को ख़त्म हो गई। उसके बाद जब ये दो एडमिनिस्ट्रेशन आई, ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पंजाब में और वेस्ट पंजाब में, तो क्या उस ज़माने के गवर्नर उसके बाद कोई रिपोर्ट्स लिखते रहे? क्या वो मटेरियल है? अगर है तो वो अभी तक क्लासिफाइड है, आज तक हमारे पास वो सोर्स जो है वो आ नहीं सका। ट्रिब्यून छपता था लाहौर से, और एक प्रो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसके रिपोर्टिंग मैंने हासिल की। बट द प्रॉब्लम वाज के अकॉर्डिंग टू गवर्नर ऑफ पंजाब लास्ट सर एवन जेंकिंस, 4 अगस्त 1947 को ही कुड काउंट ओनली 5200 डेड फॉर एवरी वन मुस्लिम। और कमला बसीन, इन्होंने दो किताबें छापी जहां पे जो औरतों के साथ उस जमाने में हुआ था, वो small scale studies थी, but very, they provided leads how to go forward where the archives are no longer available। कहते हैं मैकेनिकल जिंदगी है, मैं इसकी क्या स्टोरी बताऊं। लेकिन एक ऐसा मौका आता है जहां पे उसकी एक मोहब्बत का वो है एंगल, तो कहते हैं यहाँ से इसकी स्टोरी शुरू होती है। तो मैंने कहा पंजाब की स्टोरी बताने, द आईज ऑफ पंजाब आर ऑलवेज लुकिंग एट मी, व्हाई डोंट यू टेल आवर स्टोरी। हॉलोकॉस्ट का इतना लिटरेचर है बाकी भी, लेकिन पंजाब के ऊपर इट्स कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस। उसकी वजह कि तीनों हुकूमतें इसमें इन्वॉल्व थी, यानी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बोथ साइड्स, और द ब्रिटिश गवर्नमेंट जिन्होंने इतनी जल्दी में जाते वक्त बगैर पूरी तैयारी किए पावर ट्रांसफर कर दी। और बाद में लोगों ने जो फेस किया तो वो ये है कि ऑफ द 400 बिलियन पीपल एट दैट टाइम लिविंग इन इंडिया, कहा जाता है कि 1 मिलियन प्लस लोग मारे गए, उनकी जाने गई, और 12 से लेके 15 मिलियन लोग घर से बेघर हुए। उस जमाने में पंजाब की पॉपुलेशन अगर हम प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूड कर लें तो 34 मिलियन थी। और वहां से अब जिस तरह भी रिसर्च है, मेरी अपनी रिसर्च बताती है कि 7.5 से लेके 8 लाख लोग मारे गए बिटवीन द 14-15 ऑफ अगस्त एंड द 31 ऑफ दिसंबर 1947। हाँ जी। और 34 मिलियन लोगों में से 10 मिलियन हैड टू रन फॉर देयर लाइव्स। सो 30% ऑफ द पंजाब पॉपुलेशन was thrown out of their homes। तो फिर मैंने स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के रिसर्च बॉडी जो है, स्वीडिश रिसर्च काउंसिल से ग्रांट मैंने मांगी, वो मुझे मिल गई 3 साल के लिए। और वो ज़माने अच्छे थे,
इंडियन एम्बेसी ने भी मुझे वीज़ा दे दिया, कहा देखो जी, टूरिस्ट बन के तुम जाओ और अपना काम करो, तो कोई गलत हरकत ना करना, अगर फंस गए तो वी कैन डू नथिंग फॉर यू। अलबत्ता अगर आपने एक प्रॉपर रिसर्च वो लेना है वीज़ा, तो एप्लीकेशन हम भेज देंगे, उसका जवाब कभी नहीं आएगा। सो एट योर ओन रिस्क यू कैन गो एंड डू इट। इसी तरह मतलब हमारी तरफ मेरा पाकिस्तान के पंजाब में जाना वाज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो 2003 4 5 एवरी विंटर आई वुड कम, और यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मेरे कुलीग थे प्रोफेसर भूपिंदर बरार, उनके एक स्टूडेंट को मैंने असिस्टेंट के तौर पे हायर किया, और उधर अहमद सलीम को किया, और फिर हम गांव-गांव जाके, जब मैं वापस चला जाता था सर्दियों के बाद, तो ये लोग गांव-गांव जाके इंफॉर्मेशन लेते थे, एंड देन आई वुड कम एंड डू माय रिसर्च। लेकिन 3 साल गुजर गए, अभी आई थिंक द स्टोरी वाज नॉट येट कंप्लीटेड। तो मैं फिर अपने अपने वो कहते हैं थोड़ा सा पागल भी होना पड़ता है अगर आपने कोई रिसर्च करनी हो। हाँ जी। तो देन आई kept on talking to people, किसी को यूएसए में, लंदन में, बेडफोर्ड में जाके मैंने सर गंगा राम की ग्रैंड डॉटर लेडी श्री फ्लेदर, उनका भी इंटरव्यू किया। जर्मनी में आई थिंक ऑल्सो, बट स्वीडन, सिंगापुर, जहां जहां मैं जाता रहा। 11 साल के बाद फाइनली आई प्रेजेंटेड द बुक। और उस किताब में जैसे बताया गया है, मैंने अक्सर कहा है कि लाइफ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। उसमें कुछ ऐसी स्टोरीज हैं कि फिक्शन कैन नॉट ऑल्सो इमेजिन कि एक्चुअल जिंदगी में ऐसे हो सकता है। और मैंने कहा है कि रियल लाइफ में जहाँ वो सादत हसन मंटो का वो है ना, स्टार्क रियलिज्म, द शॉक ही गिव्स यू, वही वहाँ द मैग्निफिसेंस ऑफ ह्यूमन काइंड, जो कृष्ण चंद्र कहता है, वो भी पार्टीशन के इवेंट्स में नजर आता है। आपने शायद उसी का जिक्र किया था कि इस किस्म की मेरी रिसर्च है। जी जी। तो दैट बुक वाज वेरी वेल रिसीव्ड इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। और वहाँ पे उसे कराची में कराची लिटरेचर फेस्टिवल में इट वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट नॉन फिक्शन बुक इन 2013। फिर लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में आल्सो द बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड इन 2013। तीनों जगह पे आई वाज नॉट प्रेजेंट। ये वैल्यू ऑफ वर्ड्स वाली तो मैं इसलिए नहीं आ सका, कोविड मेड दैट इम्पॉसिबल। लेकिन पाकिस्तान में फॉर सम रीजन आई वाज नॉट इनवाइटेड, तो मैंने फिर एक आर्टिकल लिखा जिसमें एक मशहूर उर्दू का शेर है कि जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि उस महफिल में है। हाँ जी। मैंने कहा जिक्र मेरा ना करो, ते अवार्ड मैनू दे ही जाओ, है काफ़ी है मेरे लिए। हाँ जी। तो मुझे आज मैं समझता हूँ कि जिन्ना साहब की किताब ने तो फिर वो क्या कहते हैं, मेरे सपोर्टर्स, मेरे, बल्कि आई फील सो हम्बल्ड कि एक बंदा जिंदगी में आम अपने आप को पाता है और उसको फिर इतनी अटेंशन मिल जाती है कि अभी वाइल वी आई वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वन फैमिली आइडेंटिफाइड मी, एंड फिर पिक्चर को हमने देहरादून उतारी, और यही इंडिया में हर जगह हो रहा है, लोग मुझे पहचान लेते हैं। सो कुछ टेक्नोलॉजी का कमाल है हजूर, कि ये जब से ये सारा कुछ आया है, यूट्यूबर्स और ये और वो, देन द वर्क आई हैव डन। मेरी एक और किताब है जिसका यहाँ पे मेरे हेल्प पड़ी जानी चाहिए, वो है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, ऑरिजिन्स, एवोल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जहाँ मैंने बताया है कि क्यों पाकिस्तान में एक सिविलियन सुप्रेमेसी कायम ना हो सकी, और ये क्यों पहले दिन से एक सिक्योरिटी स्टेट, बल्कि जिससे मैं कहता हूँ a garrison state. The whole metaphor of a garrison has two meanings. The garrison is always at the frontier of an empire.
from where the first attack you are able to stop. It's also from there that you launch an attack. So Pakistan has this character of believing that it is threatened by India all the time, and yet has launched 4 wars from Pakistan onto India. So I think that title explains the nature of the Pakistani state. और फिर बात ये थी कि ये सारी पार्टीशन के अंदर किसका क्या रोल है। हिंदुस्तान में जो लिखा गया वो कदरे ज्यादा न्यूट्रल, वेल फाउंडेड, जो एक स्कॉलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए उसके मुताबिक लिखा गया। हमारी तरफ सारी ट्रू, तो वहां फिर मेरा था कि सच क्या है इसकी उसको ढूंढा जाए। उसमें जो मैंने मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की, मुझे समझ नहीं आती हिस्टोरियन, क्या ये कोई असूल है आपका कि सिर्फ वो जो पुलिस रिपोर्ट्स या वो ही चीजें होती हैं? व्हाट अबाउट पीपल एंड व्हाट दे सी, व्हाट दे से, व्हाट दे राइट, व्हाट दे आर्ग्यू, व्हाट अबाउट दैट? तो फिर मैंने जिना साहब की जो तकरीरें हैं बिगिनिंग विद 22 मार्च 1940 ऑनवर्ड्स एड इन्फिनाइटम, जितनी भी स्पीचेस आई हैव गॉन थ्रू, जितनी भी कलेक्शंस हैं आई हैव गॉन थ्रू, और आई हैव सेड कि 22 मार्च 1904 जिना साहब ने टू नेशन थ्योरी को फाउंडेशनल आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के तौर पे पेश किया कि हिंदू मुसलमान दो मुख्तलिफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ नहीं है, ये दो मुख्तलिफ पॉलिटिकल नेशंस भी हैं, जिनको अगर आप मजबूर करेंगे एक स्टेट में रहने को तो वो सिविल वॉर होगी, और बहुत कभी यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों के हीरो विलन बिल्कुल ऑपोजिट हैं, उनका वर्ल्ड व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है। आई मीन ऑल दोज डिफरेंसेस जो शायद थे, उनको पोलिटिसाइज करके उन्होंने वो क्या कहते हैं डाइकोटोमाइजेशन, डिमोनाइजेशन, डिह्यूमनाइजेशन की एक आइडियोलॉजी बनाई, और वो खुद कहते हैं 1937 में कि आफ्टर द डिबाकल ऑफ द 1937 इलेक्शन, जिसमें मुस्लिम लीग हार गई और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को पार्टनरशिप नहीं दी हुकूमत बनाने में, तो इन रिएक्शन देन जिना सेड henceforth I'll use communalism to arouse Muslim opposition to a united India under Congress rule. और उसके बाद जब तक पाकिस्तान बन गया, उन्होंने कभी एक दफा भी नहीं इस स्टैंड से, he never withdrew from it. लेकिन ये थीसिस कि वो चाहते नहीं थे पाकिस्तान, आई लुक्ड इन वेन कि कोई भी जिना साहब की एक स्पीच, एक स्टेटमेंट, एक मैसेज, कोई अब रिसेंटली डी क्लासिफाइड पेपर आए हों जहां पता हो कि प्राइवेटली वो ये कर रहे थे, देर इज नथिंग टू एस्टेब्लिश कि वो पार्टीशन नहीं थे चाहते, बल्कि बार बार उन्होंने ये कहा है कि अगर पार्टीशन ना हुई तो यहाँ पे ब्लड बाथ होगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यूं हो जाएगा। मसला ये है कि जब जिना साहब ने पार्टीशन की डिमांड की और 1920 23rd 24th मार्च को लाहौर रेजोल्यूशन आ गया that we demand the creation of independent Muslim states, independent and sovereign in northeastern and northwestern zones of India where Muslims are in a majority. तो उसके बाद 25 मार्च को लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिना साहब की, विच आई हैव कोटेड सेइंग कि the Lahore Resolution is a landmark in the history of the subcontinent because for the first time we now demand a division of India. So he made it very clear that the Lahore Resolution was about the partition of India. And still, a thesis has gone around, say, believing that Jinnah Sahab to actually partition chahte nahi the. And there is no evidence to substantiate it. एक जगह पे वो कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर बहुत
एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन उसको भी मैंने एनालाइज किया है कि जिन्ना साहब and Congress initially both rejected the cabinet mission plan because it didn't give Pakistan which Jinnah wanted, and it didn't give India an effective center what the Congress wanted. उसके बाद फिर जिन्ना साहब की और भी ज़्यादा बेलिकोस यानी एग्रेसिव भी चीज़ें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे and we should get Pakistan. But suddenly on the 6th of June 1946 एक इन कैमरा यानी सीक्रेट जो मीटिंग थी मुस्लिम लीग काउंसिल की, वहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज स्टिल आर irrevocable goal, but we may not get it tomorrow, but we will work towards it because of क्योंकि देखें कैबिनेट मिशन प्लान में यह था कि इंडिया वाज grouped into three groups. The princely states were not included, just the three provinces. A group was Hindu majority, B group was northwestern India के Muslim majority provinces, और C group Bengal and so on. और वो था कि every 10 years the groups as a whole or individual provinces can decide to leave the union. So already before a state comes into being, the seeds of its dissolution are included. So it can't be a federation to begin with. The definition of a federation is that you can't secede from the union. It can be some sort of confederation. तो जो उसे लोग कहते हैं कि वो फेडरेशन थी, वो डिस्क्रिप्शन ही गलत है. It was not even a confederation for another reason. Because सेंटर को उन्होंने सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस ये तीन सब्जेक्ट दिए with no original right to raise taxes. The taxes would be given by the provinces. So that meant a paralyzed center at the mercy of the provinces. The third was that the कितने थे यार 571 आपने काउंट किए हैं princely states if I remember 571. You see I don't forget. हाँ जी. तो they only surrendered their foreign affairs and defense, but retained their internal autonomy. Now, how does that make for a state, a stable, coherent state? Let's say both Congress and Muslim League agreed to keep the union on these conditions, and they even agreed that we will extend universal adult franchise to the citizens. The princely states were under no obligation to accept it. So, how could you ever really establish a viable state under the cabinet mission plan? Actually, the cabinet mission plan, I think, was an effort of the British military primarily. कि ये princely states की autonomy के जरिए you go out from uh, one door and enter from another as advisors and so on. So anyhow, the cabinet mission plan was then rejected by the Congress on the 25th of June, and the Muslim League accepted it. But what is not very often mentioned is while the Congress rejected the idea of an interim government with a loose or a weak center, it agreed to the go to the Constituent Assembly. उसके भी election हुए थे to frame a constitution for India. The Muslim League said we will join the interim government, but we will not go to the Constituent Assembly till such time that three constitutions of the three groups include this provision that they can secede. So once again, I think if you are going to be fair, अच्छा वो बात ये है कि यार वो क्योंकि लिखा सारा उसमें हुआ है ना, तो वो आसानी हो जाती है. वरना पंजाबी की इजाज़त दो तो फिर झटकी आवाज़ में भी हम बोल सकते हैं. हाँ, लेकिन चले मैं कोशिश करता हूँ हिंदी उर्दू जो भी है वो उसमें है कि अगर आपने ये दो एलिमेंट थे ना कैबिनेट मिशन प्लान के. एक था कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनती,
और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबली के भी इलेक्शन हुए थे। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट तो हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं बताता हूँ उन्होंने और क्या कंडीशंस लगाई। बट मगर हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे जब तक कि ये जो तीन ग्रुप हैं ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस बना लें जिसमें ये लिखा हो कि हर 10 साल बाद ये चाहें तो इंडियन यूनियन को छोड़ सकते हैं। जो कांग्रेस थी उसने कहा कि हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जाके इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और हम नहीं मानते कि हर 10 साल बाद ये डिसॉल्व हो सकती है। तो उस मौके पर ये क्राइसिस खड़ा हुआ। सो द कैबिनेट मिशन प्लान को जो रिजेक्ट किया कांग्रेस ने, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ एक मुनासिब बुनियाद पे किया। और उन्होंने 8 अगस्त 1947 को पहली दफा पार्टीशन के हक में आवाज दी, क्योंकि जब 23-24 मार्च को लाहौर रेजोल्यूशन आया था तो एक हफ्ते बाद सिखों के लीडर थे सर सुंदर सिंह मजीठिया, उनकी सिख नेशनलिस्ट पार्टी थी, जिसका बयान है कि अगर मुसलमान या मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की तकसीम मज़हब की बुनियाद पे करवा रही है तो पंजाब के वो इलाके जहां मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं है, हम उन इलाकों को कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देंगे। लेकिन कांग्रेस आखिर तक कोशिश करती रही कि इंडिया यूनाइटेड रहे। मुस्लिम लीग ने 46 का इलेक्शन पाकिस्तान के लिए लड़ा और जीत लिया। कांग्रेस ने यूनाइटेड रखने के लिए लड़ा और अपने उनसे मैंडेट ले लिया, अपने सपोर्टर्स थे। और सिखों ने उनकी 23 रिजर्व सीट्स थी, 23 की 23 में से 21 उन्होंने जीत ली। एक कांग्रेस के पास गई और एक पंजाब यूनिस्ट पार्टी के, जो पंजाब की एक इंटर कम्युनल पार्टी थी। तो उन्होंने जो उनका स्टैंड था कि इफ देयर इज अ पाकिस्तान, जहां जहां हिंदू मुसलमान हिंदू सिख मेजॉरिटी में है वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो तीनों के पास जो मैंडेट आया वो एक फार्मूला बन ही नहीं सकता था। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान नाकाम हो गई और फिर माउंट बैटन साहब आए, उन्होंने हर तरफ बात की। और अब सवाल ये उठता है कि ये तीन किस्म के मैक्सिमलिस्ट वो हैं मैंडेट्स, इसका क्या किया जाए। जब कैबिनेट मिशन प्लान भी कामयाब ना हुई तो फिर माउंट बैटन को कहा कि आप जाएं और ट्रांसफर ऑफ पावर बाय जून 1948 आप इसके ऊपर जाके बात करें और इंडिया यूनाइटेड और डिवाइडेड, यानी बाय जून 48 हमने हिंदुस्तान छोड़ देना है। और माउंट बैटन ने आके सबसे मुलाकात की और उसे यकीन हो गया कि स्वाय पार्टीशन के और कोई तरीका नहीं है। तो उसने, अब देखे उसमें दो बयान है। जरा पाकिस्तान क्यों बनाया अंग्रेजों ने, ये सवाल है ना जी। क्या मुसलमानों की मोहब्बत में और हिंदुओं की नफरत में बनाया? इज दैट द रीजन? तो सवाल ये पैदा होता है कि 20 साल पहले मुसलमानों का जो वाहिद एक एम्पायर थी, ऑटोमन एम्पायर का सत्यानाश अंग्रेजों ने किया था। सब कुछ उनसे छीन लिया था, मक्का मदीना बगदाद सारा कुछ यही लॉर्ड जॉर्ज ने किया था। अब वो अगर पार्टीशन कर रहे हैं और मुसलमानों का मुल्क बना रहे हैं तो वो इट कांट बी फॉर द लव ऑफ मुस्लिम्स एंड इस्लाम एंड सो ऑन। सो व्हाट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट, ये एक सवाल है। ब्रिटिश फौज के अंदर शुरू में यह था कि एक यूनाइटेड इंडिया इसलिए लाजमी है क्योंकि हमने जो आर्मी बनाई है ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो ही सोवियत यूनियन का इस तरफ जो मूवमेंट है उसको रोक सकती है। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो इस आर्मी की भी डिवीजन होगी। लेकिन जहां ये उन्होंने पोजीशन 11th में 46 में ली, एक साल एक दिन के बाद उनकी पोजीशन बिल्कुल इसके बरक्स हो गई। हाँ जी, बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू सर। इसके बिल्कुल बरक्स हो गई।
और वो ये पोजीशन थी कि एंड दिस इज 12 मई 1947। ये भाई साहब अंग्रेजी में ही मुझे कहना पड़ेगा। हाँ, हाँ जी। वो यूं है कि एक मेमोरेंडम तैयार हुआ जिसमें 3 हेड्स ऑफ द ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस, हीरो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फील्ड मार्शल मोंटगोमरी, लॉर्ड इसमें, और इन सब ने लिखा है कि अगर अब पार्टीशन होती है तो जिन्ना साहब ने कॉमनवेल्थ में मेंबरशिप के लिए अपनी रजामंदी, ही इज एग्रीड टू ज्वाइन, वेयर एज हिंदुस्तान में गो इट्स ओन वे, कि हिंदुस्तान शायद जिस तरह हम चाहते हैं हमारी मर्जी ना माने। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस वो वाहिद पार्टी थी कम्युनिस्टों के अलावा, मतलब एट वन पॉइंट, जिसने हमेशा एक हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मूवमेंट की, और उसमें एंटी इंपीरियलिस्ट जितने थे, हाँ, और रेडिकल्स, वो सारे नेहरू जी के इर्द गिर्द थे। तो उनका ख्याल था कि एक ऐसा इंडिया जो है वो हमारी जो इंपीरियल एम्बिशंस हैं उसमें फिट नहीं हो रहा। तो मिलिट्री में फिर ये फैसला किया कि वी if now partition takes place, we should demand from Pakistan access to Karachi port facilities, Pakistan airfields and Muslim manpower. ये उनका 12 मई 1947 का मेमोरेंडम है। इसमें 3 हेड्स ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड द होल मिलिट्री। तो मिलिट्री ने आखिर में सोचा कि पार्टीशन के जरिए वो इस इलाके को कम्युनिज्म के जो है ना एक्सपेंशन को रोकने में एक रोल प्ले कर सकते हैं। टाइम का फैक्टर है, वरना इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सारी सोच कैसे बनी। लेकिन अब मेरे पास वक्त कितना है, अभी तक है आधा घंटा। देखें, उसकी बैकग्राउंड ये है कि 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू जो प्रेसिडेंट थे उस जमाने में कांग्रेस के, उनका उनकी स्पीच है कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हम जिम्मेदारी सिस्टम ख़त्म करके जो किसान हैं, टिलर्स ऑफ द लैंड, हम उनके हकूक मजबूत करेंगे, और हम हिंदुस्तान को सोवियत यूनियन की जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उसकी उसकी रोशनी में हम इंडिया को एक सोशलिस्ट मुल्क बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से उस दिन से कम दो ऐसी, एक सोशल क्लास और एक एम्पायर के अंदर ये डर हो गया कि इंडिया जो है ये एक सोशलिस्ट मुल्क ना बने। और जिन्ना साहब ने इसको इस्तेमाल किया, और जो लैंडलॉर्ड थे मुसलमान नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के, उनको कहा कि देखो, अब तुम ये जो है ना रीजनल पार्टीज को छोड़ के हमारे साथ आ जाओ, और अगर आपने अपनी जिम्मेदारी बचानी है तो द मुस्लिम लीग इज योर गारंटर। और अंग्रेज़ों ने फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुई, वहां पे कांग्रेस की एक और गलती है मेरे ख्याल से, कि उन्होंने उस जंग में अंग्रेज़ों का साथ देने से इनकार कर दिया। उनकी आर्गुमेंट दुरुस्त थी, इंटेलेक्चुअली, मॉरली, लॉजिकली। वो ये थी कि आप कहते हैं कि हम ये जंग दुनिया की आज़ादी के लिए फैशिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान खुद एक कॉलोनी है, वी आर नॉट अ फ्री पीपल। तो पहले हमें पावर ट्रांसफर करें और फिर एक आज़ाद मुल्क की तरह हम फैशिज्म के खिलाफ जो जंग है उसमें अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन अ, इस के डेक्लेरेशन के बाद जिन्ना साहब मिले लॉर्ड लेनलिथगो को, और उन्होंने कहा देखो, अब तुम समझो मुस्लिम लीग की अहमियत, हम तुम्हारा साथ देते हैं इस जंग में, लेकिन जंग के बाद राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मुसलमानों को ये है वो है। अंग्रेजों ने कहा अच्छा, भी कंक्रीटली डिमांड समथिंग देन। उसमें से ये लाहौर रेजोल्यूशन आया। लॉर्ड लेनलिथगो एनकरेज द मुस्लिम लीग कि आप कुछ कॉन्क्रीटली डिमांड करें। और उसके बाद मैंने कोट किया जिन्ना साहब को कहते हुए कि until now it was Mr. Gandhi, Mr. Gandhi, Mr. Gandhi,
नाउ दे आर टर्निंग टुवर्ड्स मी, कि ये आज तक तो गांधी की तरफ जाते रहे, अब मेरी तरफ अंग्रेज आ रहे हैं। और लॉर्ड लिनलिथ को, जो वाइस रॉय, वो कहते हैं कि आई हैड अ पर्सनल रीजन टू प्रमोट जिना, बिकॉज had Jinnah and Congress joined hands, maybe we could not have held on to India. अब बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने 2.5 मिलियन सोल्जर्स की जरूरत थी, और कांग्रेस ने उनकी मदद नहीं की, मुस्लिम लीग ने की, हिंदू महासभा ने की, अकाली दल ने की, इन सब ने फौज में भर्तियां करवाई, लेकिन कांग्रेस ने नहीं करवाई। और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू हुई, तो तब ये 3 साल जेल में रहे कांग्रेस के लीडर्स, फ्रॉम द 9th of August टिल जून 1945। इन 3 साल में फिर जिन्ना साहब ने जा जा के मुसलमानों को आसमान जमीन हर किस्म की, जो है ना, कि ये भी हो जाएगा पाकिस्तान में, ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, मौलवियों को भी खुली छुट्टी दे दी, जो मर्जी वो कहते रहे, कि रियासत मदीना वापस आ जाएगी, इंसाफ रसूलुल्लाह जैसे करते थे वैसे होगा, और हिंदू मनी लैंडर से आपको आज़ादी मिल जाएगी, ऐसा इंसाफ होगा कि जो दुनिया चौंक के रह जाएगी। मतलब ऑल दो स्टोरीज उन्होंने अपने कैंपेन में की। और बाद में फिर ये इलेक्शन रिजल्ट आया। इलेक्शन रिजल्ट के बाद मैंने बताया माउंटबेटन का हम बहस की, मिलिट्री की डिसीजन फाइनली ये है। और एक और कंक्रीट प्रूफ आपको दे दूं, उस जमाने में हिंदुस्तान के 4 वो थे कमांड्स: ईस्टर्न कमांड कैलकाटा, सदर्न कमांड मद्रास, सेंट्रल कमांड दिल्ली एंड नॉर्दर्न कमांड रावलपिंडी। तो ईस्टर्न कमांड के जो हेड थे सर फ्रांसिस टकर, लेफ्टिनेंट जनरल सर फ्रांसिस टकर, उनका उनकी किताब है वाइल मेमोरी सर्व्स, वॉल्यूम 1 में वो लिखते हैं कि वी नीड टू क्रिएट एन इस्लामिक आर्क beginning in Algeria through Arabia Deserta, down in Persia into northern Hindustan, a Muslim majority state armed with Islamic ideology and British science. तो ये सारी फौज के अंदर एक समझ आई कि अगर पाकिस्तान बन जाता है, तो जो सोवियत यूनियन को रोकने का रोल है, वो हम पाकिस्तान के जरिए पूरा करेंगे। और मैंने गैरिजन स्टेट किताब में दिखाया है कि एक्चुअली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले मिस्टर इस्फहानी, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे मुस्लिम, उनको भेजा अमेरिकन को, कि बिकॉज द अमेरिकन वर अपोज टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द ब्रिटिश मिलिट्री एट द लास्ट मोमेंट वांटेड इंडिया पार्टीशन टू क्रिएट पाकिस्तान। तो जिन्ना साहब ने भेजा इस्फहानी को अमेरिकन के पास, कि देखें, एज अ मोनोथिस्टिक इस्लामिक रिलीजन रशियन एथीज्म को हम आइडियोलॉजिकली कन्फ्रंट करेंगे। और मिडल ईस्ट, जहाँ पे आपके ऑयल रिजर्व्स हैं, यू हैव एन इंटरेस्ट, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे वहाँ पे कल्चरल लिंक्स भी हैं, तो वी कैन ऑल्सो सर्व यू इन द मिडल ईस्ट। तो ये सारी इस किस्म की लॉबिंग, ये अंग्रेज मिलिट्री की डिसीजन, आखिर में पार्टीशन हुई। और पार्टीशन के अंदर फिर माउंटबेटन का ये फैसला कि जून 1948 की बजाय उन्होंने मई के एंड में यूके के जाके तो उनसे इजाज़त ले ली कि आई ब्रिंग द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर फॉरवर्ड टू मिड अगस्त 1947। तो ये बेसिकली माउंटबेटन का आइडिया है कि जल्दी जल्दी हम पावर ट्रांसफ़र करें एंड वी गेट आउट ऑफ इंडिया। बाय दैट टाइम पंजाब वाज ऑलरेडी अप इन फ्लेम्स। मार्च 1947 से आग लग रही थी, लोग मारे जा रहे थे। बल्कि आप ये कहें कि 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन जिन्ना साहब ने जब किया, तो हजारों लोग मारे गए। फिर डायरेक्ट एक्शन उन्होंने पंजाब में करवाया, तो एक और राउंड ये कम्युनल किलिंग का हुआ। और आखिर में जब पार्टीशन हुई, तो जो रिजल्ट मैंने आपको बताया, वो सच ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ। तो जिन्ना साहब को मैंने दिखाया है कि
इन सारे मौक़ों में उनका सेंट्रल रोल है फॉर इंसिस्टिंग ऑन पार्टीशन। कई कोशिश हुई कांग्रेस की तरफ से कि ये हमारी बात किसी तरीके से मान लें। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल एंड देन वी कैन ओपन आउट फॉर क्वेश्चंस। 1944 में लॉर्ड वेवल ने महात्मा गांधी को रिलीज किया जेल से कि आप जाके जिन्ना साहब से बात कर लें कि जंग के बाद अगर ये दोनों अग्री कर जाएं कि भी इंडिया में क्या होना चाहिए तो वी कैन हैव अ लुक एट दैट प्लान। तो गांधी जी 15 से लेके 19 दफा जिन्ना साहब को मिले और आखिर में गांधी जी ने ऑफर किया कि ठीक है, अगर आप पाकिस्तान चाहते हैं तो हम ये करते हैं कि जंग के बाद उन इलाकों में जहां मुसलमान पाकिस्तान बनाना चाहते हैं हम वहां पे प्लेबिसाइड करा लेते हैं, क्या वहां के लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं या नहीं। जिन्ना साहब ने स्टैंड लिया कि ठीक है, ये आपका प्रोसीजर मुझे एक्सेप्टेबल है, लेकिन सिर्फ मुसलमान इस प्लेबिसाइड में वोट दे सकेंगे। नाउ दिस वाज ग्रोसली अनरीजनेबल। आप देखें, एक माइनॉरिटी मुसलमानों की 25% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन उस जमाने की, वो उन इलाकों में जहां वो मेजॉरिटी में है वो कहते हैं ये अलग करके पाकिस्तान हमें दे दें। अगर इसके ऊपर प्लेबिसाइट होता तो कभी पाकिस्तान बन नहीं था सकता। वो अगर पाकिस्तान बनना था विदाउट अ प्लेबिसाइट तो जिन इलाकों में अब वो अब पाकिस्तान बना रहे थे वहां के जो गैर मुस्लिम हैं उनको तो हक है ना कि वेदर दे वांट टू लिव इन सच ए पाकिस्तान और नॉट। तो उनको जिना साहब इसका हक नहीं थे देना चाहते। ही वांटेड the cake and eat it as well. He wanted the whole of Punjab and Bengal, but have India partitioned on the basis of religions. The Sikh position was that if you have India partitioned on the basis of religion, we'll have the Punjab partitioned on the basis of religion. And later, the Hindu Mahasabha said that if India is to be partitioned on the basis of religion, then we'll have Bengal also partitioned on the basis of religion. Finally, यही हुआ कि जिन्ना साहब को जो गांधी जी ऑफर कर रहे थे कि भाई पीसफुली हम प्लेबिसाइड करा लेते हैं, हिंदू सिख मेजॉरिटी इलाके जो हैं वो अगर ना पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहें तो वो इंडिया का हिस्सा बन जाए, बट जिन्ना वांटेड द होल ऑफ पंजाब एंड बंगाल। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन्ना साहब के पास अगर वो पाकिस्तान चाहते भी थे तो देयर वाज अ फेयर चांस कि इस फॉर्मूले को मान लिया जाता। लॉर्ड वेवल राइट्स के जिन्ना ओवर प्लेड हिज हैंड। Ultimately, he got the same Pakistan that was on offer in 1944, but only it resulted in the loss of so many lives and the disruption of society and so on and so forth. I think I'll stop here because uh, महल क्वेश्चंस के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करते हुए आई कैन देन, ठीक है, अब मैं बैठ सकता हूँ और ये अपनी तीनों किताबों का थोड़ा सा मैंने जिस्ट भी आपको दे दिया है, तो नाउ यू कैन। अ, सर एक सेकंड हमारे पास कुल मिलाकर आधे घंटे से 3 मिनट कम है, तो ज्यादा लंबा सवाल नहीं, ज्यादा लंबी टिप्पणी नहीं। 2 मिनट से ज्यादा लोगे मैं काट दूंगा। ठीक है। थैंक यू। जस्ट वन क्वेश्चन रिगार्डिंग द पंजाब वायलेंस। जी जी। मतलब इज इट हाउ मच would you give the fact that too many servicemen in the province of Punjab, so like, and who have just returned from fighting a world war, so that they have learned to kill. That's correct, sir. So
because people have said that when the June 3rd decision is taken, lot of people say that the worst is over. I mean, only the governor getting reports on the basis of the reports he is getting from the civilians जी जी is saying that, villages are all set to. या आई नो. So, आपका how much? सवाल क्या है? व्हाट्स योर क्वेश्चन No, सर? हाँ, question is that too many ex-servicemen in the province of दैट्स राइट Punjab. सर. The violence, हाँ, the scale of violence in Punjab. एब्सोल्युटली. आई वो तो अब सवालों में आई हैव एन अपॉर्चुनिटी को इसका मैं जवाब दे सकूं. देखें, 1857 के बाद बंगालियों को फाइटिंग वो क्या कहते हैं फोर्स में नहीं थे रखते. डॉक्टर आर्मी में भी हो सकते थे बट नॉट इन द फाइटिंग यूनिट्स. ज्यादा आर्मी उन्होंने पंजाब से और ये जो गुरखा टाइप हैं और ये डोगरास इनसे, तो ये सारा यही लोग 1 मिलियन से ज्यादा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीमोबिलाइज होके अपने अपने गांव में आए थे. और जो नेक्सस बना, उसमें नेक्सस के अंदर जो थे ना अंडरवर्ल्ड के गुंडे, जो ये जुआ करवाते हैं, नशा बेचते हैं, हाँ, इस किस्म के लोगों को पुलिस को, ये पुलिस टाउट भी होते हैं, इनको मोबिलाइज किया गया. साथ में लोअर लेवल के थानेदार ये वो इन्वॉल्व थे, मैजिस्ट्रेट्स इन्वॉल्व थे. मेरी किताब में सारी डिटेल्स हैं. बल्कि शहालमी में जो हिंदू सिख मेजॉरिटी इलाका था लाहौर का, जिस बंदे ने आग लगाई उसकी पूरी कन्फेशन मेरे पास है, उसकी फोटो भी मेरी पंजाब वाली किताब में है. इसी तरह लाहौर हमारे टेम्पल रोड पे मेरे घर से कोई 200 मीटर दूर सिखों का एक गुरुद्वारा था, छेवीं बादशाही. उसके ऊपर भी जो हमला हुआ, लगाने वाला जो है मुजाहिद ताजदीन, उसकी पिक्चर भी है उसकी मर्जी से. और हाजी अब्दुल रहमान, उसकी भी जिसने शालमी की लगाई थी. तो ये थे. मगर जो इनिशियल अटैक रावलपिंडी में हुए, जहां पे सिखों के गांव घेर के 6 मार्च की शाम से लेके 12 की रात तक कोई ना फौज आई है ना पुलिस आई है. 1 हफ्ते जिसने जो चाहा कत्ल किया. सिख तो कहते हैं हमारे 10,000 लोग मारे गए. ब्रिटिश रिकॉर्ड ने 3,800 का जिक्र किया है, क्योंकि पुलिस आपको पता है हमेशा रिपोर्ट कम बताती है, वरना उनकी हाजिरी हो जाती है ना. अभी अंग्रेजों का दौर था, तो मेरी अपनी रिसर्च, मैंने गांव गांव जाके काफी टाइम स्पेंड किया. एक ही गांव के मुसलमान और हिंदू सिख ढूंढे, उनका जो एविडेंस है उस दिन क्या हुआ था वो मेरी किताब के अंदर है. तो आई वुड से एनीवेयर बिटवीन 5 से 7 हजार, मेनली सिख, लेकिन वहां पे हिंदू भी मारे गए. तो इसमें तो जनरल मसरवी जो पाकिस्तान के फर्स्ट कमांडर इन चीफ, उनकी पूरी रिपोर्ट है कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया है, ये बिल्कुल आर्मी वालों का तरीका है. तो इधर से इन्वॉल्वमेंट थी, उधर से आईएनए के लोग जो हैं, मसलन एक बड़ा नाम है नरिंजन सिंह गिल, ईस्ट पंजाब में, वो आईएनए का कर्नल था. उसने हमले मुसलमानों पे करवाए. और फिर प्रिंसली स्टेट्स की जो आर्मीज हैं वो भी इन्वॉल्व हो गई, पटियाला और इधर उधर. तो फौज का इसमें इन्वॉल्वमेंट शुरू से है. और इतना ज्यादा कत्लेआम, बेसिकली इन लोगों का मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा ये तो मेंटली, मतलब ट्रेंचेस में रहते हुए गोली मारना जस्ट बिकेम अ हैबिट. तो आपकी बात बिल्कुल सही, 100%. राजीव, एक सेकंड, यहाँ राजीव, फिर उसके बाद आपके बारे. मैं सब ये पूछना चाहूंगा जी कि आपने तो बहुत काफी लोगों को इंटरव्यू किया होगा, जी और जो उस वक्त स्टॉन सपोर्टर थे जिन्ना के, जी और पाकिस्तान के मतलब ये पार्टीशन में जिनकी बड़ी सक्रिय भूमिका थी, मतलब खूब बढ़ चढ़ के भाग जिन्होंने लिया, कत्लेआम भी जी किया, जी. उनसे आप मिले तो वो अब क्या सोचते हैं? मतलब कोई पछतावा या इस तरह का कि गलत हो गया, इस तरह का कुछ महसूस करते हैं? अब देखिए, इस सवाल का जवाब देते हुए मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ.
हाँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इंडिविजुअली आप बैठ के अगर पूछें तो वो उन्हें बहुत दुख होता है। हाँ जी, कि हमारे टीचर थे, देखें मेरी बहन की शादी पे वो मास्टर जी ने आके तो पैसे दिए, ये सारा कुछ प्राइवेटली वो बता देते हैं। लेकिन अगर आप पूरा एक ग्रुप बिठा लेना तो वहां दे वुड नॉट शो एनी रिग्रेट्स। तो ये एक कैरेक्टर वहां का है। इधर की बात सुना दूं आपको। हमें खबर मिली कि ये एक कोई सरदार था जिसका नाम था, कभी रंजीत सिंह उसे कहा जाता है, कभी अजीत सिंह, कि उसने 3,000 मुसलमान मारे थे। तो उसको हमने ढूंढ लिया। तो जब उसका हमने इंटरव्यू किया, उसकी भी पिक्चर किताब के अंदर है। तो उसने कहा, बाऊ जी, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਾ अंग्रेजी साइड ਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੱਲ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ नहीं लाया। और इसके दरमियान शायद 10 फुट का वो रोड है। रोड के इस तरफ मार देना इज लेजिटिमेट, उसके इधर जाके मारना नो, बिकॉज गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को वहां के नवाब ने बचाया था। तो द सिख would not kill people on this side, but if they were on this side he would kill। और आपको मैं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस, ये जिसने ये 6वीं बादशाही को आग लगाई थी, मुजाहिद ताजुद्दीन ने। जब हमने उसको इंटरव्यू किया तो उसने कहा, मैं अल्लाह से और ये बड़ी माफ़ी मांगता हूँ कि हमसे बहुत जुल्म हो गया, पाकिस्तान तो ऐसी स्टेट ही ना बन सका जो हमें ख्वाब दिखाया गया था। और तो वो कहता है कि 68 में मैं गया इंडिया, ये ख्वाजा नाजमुद्दीन के वो उर्स पे। तो बॉर्डर के ऊपर हिंदू और सिख हमें पता नहीं 2-2 सेब और एक एक ऑरेंज या वाइसी वर्सा दे रहे थे। फिर जब मैं दिल्ली में था तो एक अनारकली लाहौर के हिंदू ने मुझे पहचान लिया और कहा, यार कुछ तुम्हें कुछ तकलीफ हो तो मुझे बताना, आई विल हेल्प यू। तो कहता है, मैं तो अल्लाह से बड़ी माफ़ी मांगता हूँ। ये स्टोरी हमारे अपने इलाके के, मैं मुजंग की बात कर रहा हूँ। एक शायर है, अब तो ही इज नो लॉन्ग, सलीम शाहिद। मैंने कहा ये उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा, यार एक स्टोरी उसने नहीं बताई। वो ये थी, ये हुआ था अटैक 13 अगस्त को 6वीं बादशाही पे। 14 और 15 अगस्त को ये एग्रीमेंट थी कि जितने हिंदू और सिख है ना कैदी लाहौर जेल खाने में, वो सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पे लाए जाएंगे और अमृतसर से जो मुसलमान वो है उनका एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि हुआ ये था कि जब जेल रोड से हिंदू और सिख बस में आ रहे थे तो पहले से पुलिस के साथ एग्रीमेंट थी कि ये हमारे लिटन रोड पे आके, तो द ड्राइवर विल प्रिटेंड के जी गाड़ी जो है ना वो रुक गई है। तो वहां पे वो रुकी और इनको निकाल के, वहां पे होती थी पैलियां, हम कहते हैं जी, जहाँ पे उगाते हैं मतलब ग्रीनरी, वहां पे उन सबको कत्ल किया गया। तो उसने कहा, मुजाहिद ताजुद्दीन ने जो ये एक्ट किया है, वो जो है ना पहला वाला कि हमने हमला किया, मैं मुजाहिद था, when I jumped over this, wall into the Gurdwara, then he could play the hero. But here this was a cowardly act के लोगों को मारा गया। तो इस तरह भी स्टोरीज हैं कि लोग सच जो है बताते हैं, फिर घबरा जाते हैं, फिर छुपा भी जाते हैं। तो ये इस किस्म की स्टोरीज हैं। लेकिन ज्यादातर मैंने नोट किया है कि हिंदुओं और सिखों ने जिन्होंने हमला किया, वो कहते हैं कि इंसान को मारना पाप है। यहाँ पे ये ज्यादा लोग मानेंगे। पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटली यही कहते हैं सब कि ऐसी बड़ी ज्यादती की थी जी, वो पंडित जी बड़े नेक आदमी सन, मैनू ए मदद की थी, ये सारी बातें करते हैं। एक ग्रुप में बिठा दें, देन दे डोंट। तो ये इस किस्म का फर्क है। हाँ जी। एक पीछे साहब, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, आप डॉक्टर साहब 1947 में पैदा हुए जी। और उसी वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान
का डिवीजन हो गया जी और बड़ा इंटेंस सेंटिमेंट दोनों साइड में था। उसके बाद आप ग्रो किए तो आपकी फंडामेंटल एजुकेशन पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी इंटेंस हेट्रेड सो टू से, उसके बावजूद भी आपने इतनी ऑब्जेक्टिवली सारी सिचुएशन को स्टडी किया, बहुत अच्छी तरह से डीप रिसर्च करी और उसके लिए बहुत मेहनत करी, उसको इतनी किताबें लिखी। ये कैसे पॉसिबल हुआ जबकि आज भी पाकिस्तान के अंदर ये सेंटिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता? दोनों साइड में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म है, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है। कुछ लोग, अब इसमें तो कई इसके डिवीजन भी है, सब डिविजन भी है, किस तरह के एक्सट्रीमिज्म है। लेकिन वॉट एवर इट इज, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ पॉइंट? आपकी ऑब्जेक्टिविटी पे आप थोड़ा सा किस तरह से आप मैनेज करा आपने अपने आप को? अब आपने तस्दीक खुद ही कंफर्म कर दिया तो मैं क्या कहूँ। यही इसका प्रूफ है कि अगर ये मैंने ना किया होता तो क्या मुझे आपने यहाँ बिठाया होता? वो किसी ना किसी ने करना था। देखें, झूठ और सच का ये झगड़ा, पाप और नेकी का झगड़ा, ये हमेशा चलता रहता है। कोई ना कोई होता है जो फिर इस किस्म के जो है ना डिस्टॉर्शंस और ये सारों को चैलेंज करता है। हो सकता है मेरे अंदर कुछ अपनी एक गॉडली, ये मुझे डिवाइन का तो यस, कुछ पता नहीं, लेकिन यस, ये अलबत्ता ज़रूर है कि मुझे अभी भी हिंदू मुस्लिम सिख बच्चे लिखते हैं, थर्ड फोर्थ जनरेशन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कि सर अगर आपका नाम ना पढ़े इश्तियाक अहमद, वी कैन नेवर टेल कि ये हिंदू ने लिखा है या मुसलमान ने या सिख ने। तो मैंने कहा मैंने ये तो लिखा था इंसान बन के, और पंजाबियों का दुख मेरे दिल में बहुत था। we are all impressed. ये We are very greatly impressed by जी whatever you say. Thank you. Thank you. कुलदीप जा, रुक जा। Thank you, Professor, for the wonderful enlightening session. I have three questions. One is, yeah, I have three questions. While you were researching, one was with the what challenges you faced in the historiography as such, because when we look at the documentary sources, and when we also look at the oral history, most of the time the oral history tells a very different picture from the what documentary sources. So first is my question is the challenges you face in the historiography. Second question my is that while you're talking about the Punjab and the partition, and when we talk about Punjab and partition, a lot of it is focused on an individual, Jinnah, and how, or anywhere, that how individual is the role player in shaping a nation. But then, if we would look at the works of, like, say, Gyanendra Pandey, or if you look at Joya Chatterjee's work, and we say that there is a lot of subaltern element also involved in the process, especially the religious fundamentalism, which was not really inclined or moved towards which was not really towards the what you would say a political ideology or the framework within it. And my third question, Doctor Professor, is very interesting because both Dr. Das and you started with something called memory, and I always looked at it in that sense because my when I asked my mother that why you stayed in India, she always say that it's my country, and I say and something of we see it in television कि कुछ पाकिस्तान में कुछ हो रहा है and we are fighting against it or they are enemy, they say no, we are one. So what role did so my question is in case of the memory is uh, right now we live in a world where national boundaries are you very know you're actually into a long, yani, uh, I lose track of the questions. Just come to the question. I think I have a sense what you're trying to say. सवाल आपके क्या है? एक दो तीन और उसका जवाब लें। पहला सवाल क्या है? what are the challenges you face with the historiography? That's right. One, let me answer. As I said, जो historiography थी
done by historians, वो जो है archival material, यानी reports handed down by the British, and those end on the 14th of August. 15th, when they transferred power, if the governors kept on writing fortnightly reports, they to this day have not been uh, uh, declassified. So they are still classified, or they were never written. So we don't know कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर ढूंढें तो कहाँ ढूंढें. अच्छा, लोग किताबें इस्तेमाल करते हैं उस जमाने के जो ऑफिसर सर्व कर रहे थे, या पॉलिटिशियंस की जो मेमोरीज हैं, दोज ऑल आर वैलिड सोर्सेस जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे. लेकिन if you really want to talk about the partition of Punjab, the actual story begins on the 17th of August 1947. Let me try to illustrate it I approached the whole thing as a political scientist. और उसमें मेरी एक, पता नहीं आपने मेरी किताब देखी है या नहीं देखी, उसमें एक चैप्टर है, A Theory of Ethnic Cleansing, where I go into how all these things happen, mob psychology क्या होती है, ethnic activist क्या करते हैं, leadership क्या करती है. If you have not read it, then I don't think there is any point going into that theory. But what I've argued is कि जो हिस्टोग्राफी थी वो तो चुप हो जाती है 14 अगस्त के बाद. तो जो एक्चुअल किलिंग हुई है और फोर्स्ड माइग्रेशन हुई है और एथनिक क्लेंजिंग हुई है, वो तो उसके बाद हुई है, और 31 दिसंबर 1947 में कंप्लीट भी हो गई. तो हाउ डिड ऑल दिस हैपन एंड व्हाट्स द स्टोरी? वहां पे ओरल हिस्ट्री जो है, कलेक्शन, becomes the only way to tell the story. अब वहां पे लोग कहते हैं यार हाउ डू यू नो कि ये झूठ नहीं बोल रहा. तो मैंने कहा जो रिसर्चर है ना, उसको एकदम पता लग जाता है कि ये जो बंदा है ये एक पॉलिटिकल एजेंडे वाला है, और ये एक आम अनपढ़ सा आदमी है, उसको एकदम आपने पकड़ लिया है, वो क्यों एक झूठ बोलेगा. तो फिर जाके हमने उन गांवों में कईयों की स्टोरी चेक भी की और वो दुरुस्त साबित हुई. लोग उसमें दे मे नॉट बी वेरी एजुकेटेड, तो वो 1000 कह देते हैं व्हेन मे बी द नंबर वाज अ फ्यू हंड्रेड्स. दे डोंट नो हाउ टू काउंट. क्या महीने थे, तो वो पंजाबी के महीने आपको बताएंगे. बट देन थ्रू ट्रिब्यून एंड पाकिस्तान टाइम्स एंड अदर सोर्सेज वन कैन ट्रेस कि ये सितंबर था, ये अगस्त होगा, इस तरह करके है. सो आई हैड टू डू ऑल दैट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल. द थ्री इंडियन feminists had already done oral histories. So there was a way of doing it. Only I did it for the whole of Punjab. कोई इलाका मैंने नहीं छोड़ा. तो और फिर पूरी क्रोनोलॉजी, और मेरी रिसर्च जो है ना, बेसिकली इट्स एट द लेवल ऑफ हाई पॉलिटिक्स, लंदन एंड दिल्ली, द ब्रिटिश गवर्नर, पंजाब administration, then at the level of the villages, mohalla, streets and all. So all levels of what transpired are in the book, and only a political scientist could have done it, not a regular historian. Unka ye training hi nahi hai. So that is why the book is a very different book from what the historians have been writing in the past. All I can tell you, that has earned me their wrath. वो सारे मेरे खिलाफ हो गए. हाँ, लेकिन आप लोग मेरे साथ हैं, तो जीत तो मेरी हुई है ना. हाँ हाँ. अच्छा, अच्छा, दूसरा, sorry you have run out of time. हाँ, About your subaltern interest. सबाल्टर्न इज ए, stop वो throwing एक blame. वाइड सी टर्म है, वो जो मर्जी कह दो. हाँ, इट मेक्स. You talk to हाँ him later. जी जी. I have Kuldeep over there who had raised his hand. We have run out of time, I may warn you. सर 10 मिनट बता दे, हो कोई फर्क है. सर उस दौर में एक तरफ तो गांधी जी और नेहरू कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे जी और दूसरी तरफ जिन्ना और इकबाल और बाकी सब लोग मुस्लिम लीग को जी रिप्रेजेंट कर रहे थे. जी. तो जो पार्टीशन का सवाल आया उसमें एक तरफ तो इंडिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान. तो क्या जो पंजाब के अंदर सिख लीडरशिप थी या सिख सेंटीमेंट थे, क्या सिख नेशन के लिए भी कुछ सेंटीमेंट थे?
या कोई डिमांड थी क्या सिख लीडर्स की? जी जी, सिखों ने डिमांड की कि हमें आप एक सेपरेट सिख स्टेट दें, लेकिन सिखों का प्रॉब्लम क्या था ये भी साथ साथ सुन लेना, जो सिख लीडरशिप नहीं बता सकती, कि द सिख्स वर नॉट इन अ मेजोरिटी इन एनी पार्ट ऑफ पंजाब, नॉट इवन इन द प्रिंसली स्टेट्स। तो सिख स्टेट कहाँ बनती? एट मोस्ट पटियाला और एक दो स्टेट्स के क्योंकि रूलर थे वहां बन जाती, बट देन दैट वुड लीव सो मेनी सिख्स इन पाकिस्तान। समझ गए आप? तो डिलेमा सिखों का ये था, उन्होंने डिमांड किया भी, बल्कि आई थिंक सिखिस्तान भी कहा गया, उसे खालिस्तान भी वर्ड इस्तेमाल हुआ है फ्रॉम द, कि हमें अपनी थर्ड स्टेट दे। बट देयर वाज अ मुस्लिम कंसंट्रेशन इन सम एरियाज व्हिच केम टू पाकिस्तान, द रेस्ट वर हिंदू सिख मेजॉरिटी एरियाज। बट कोई ऐसा इलाका, ननकाना साहब, अमृतसर, जो होली प्लेसेस हैं, कहीं भी सिख मेजॉरिटी में नहीं थे। सो ये डिमांड हुई, द ब्रिटिश ओवर रूल्ड इट। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे, मलिक सर खिजर हयात तिवाना, जिनकी पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी इंटर कम्युनल थी, यानी हिंदू मुस्लिम सिख सारे मिल के उस पार्टी में थे, उन्होंने प्रपोज किया था कि एक अगर पाकिस्तान बनता है और एक इंडिया बनता है तो एक यूनाइटेड पंजाब की थर्ड डोमिनियन आप बना दें। वो भी अंग्रेजों ने एक्सेप्ट नहीं की। उधर बलोच वहां पे सोहरवर्दी और सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई जो हैं, ये एक इंडिपेंडेंट बंगाल बनाना चाहते थे, वो भी अंग्रेजों ने नहीं एक्सेप्ट की। द फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद द ब्रिटिश। उन्होंने जिस किस्म का पाकिस्तान बनाया, वही पाकिस्तान उनके काम आया ना अफगान जिहाद के लिए। दैट्स व्हाट पाकिस्तान वाज क्रिएटेड फॉर, एंड दे गॉट फुल बेनिफिट आउट ऑफ पाकिस्तान। वो दूसरी बात है कि पाकिस्तान के अवाम का सत्यानाश कर दिया बाई ट्रेनिंग देम इनटू सच एक्सट्रीम आइडियोलॉजी। वो एक पर्पस के लिए बनाई गई, बट इट्स नाउ पार्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस एट मेनी लेवल्स। ये हुआ है। सिखों की डिमांड जरूर थी, लेकिन इट वाज नॉट पॉसिबल। अच्छा, इस्लाम भाई जरा रुक जाइए, कर्नल मंगाई, बट प्लीज बी ब्रीफ विद योर क्वेश्चन। One question, sir, and one suggestion for the audience. My question is, sir, आपका इतना इंटरेक्शन हुआ है पाकिस्तान के सोल्जरी के साथ, उनके अवाम के साथ. What is the effect of these successive defeats that the Pakistani armed forces have suffered in the last 50 years? One. Second is to the management. मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ सर, हम में से कई लोग हम इतने बुढ़े हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि हमारे फोन का अंदर से बजे जा रहा है in a wonderful talk like this. And when there are 10 phones which are going all around you, it is extremely, what can I say? बड़ा गुस्सा आता है. पॉइंट टेकन। Thank you. देखें वहां पे तो कभी ये माना ही नहीं गया कि हम डिफीट हुए। वो तो कहते हैं सब जंगें हमने जीत ली थी। मैं खुद, आई वॉज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, 6 सितंबर 19 नहीं, हाँ जी, 1965 को, व्हेन उस जमाने में लोग, अभी अच्छे दिन थे, तो यू कुड स्लीप एट द ऑन द रूफ टॉप्स। हाँ जी, तो आई रिमेम्बर द प्लेन्स, ये 3-4 सेबर, वो इतना रूफ टॉप्स पे गए, एंड माय यंगेस्ट सिस्टर वो स्टार्टेड स्क्रीमिंग बिकॉज nobody had heard such a sound, and then we knew that we are at war with India. और फिर जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने ये कि वी आर एडवांसिंग और वो भाग रहे हैं, अल्टीमेटली सीज फायर एंड नथिंग केम आउट ऑफ इट। 71 की जंग वो ब्लेम करते हैं कि देखें ये हमेशा पहले पाकिस्तान को नहीं थे मानते, अब इन्होंने इंटरवीन करके पाकिस्तान तोड़ दिया है। सो द मिलिट्री हैज नेवर itself accepted officially कि they were defeated. they say कि अगर ईस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो हमसे अलग होता, क्योंकि बीच में इंडिया था, तो वी कुड नॉट रिप्लेनिश आवर सोल्जर्स, प्रोवाइड देम द फैसिलिटीज। तो वो जो जंग जीती इंडिया ने, वो इस पोजीशन में जीती है।
तो एक मिनट सर, so they have never accepted that they actually suffered defeat, and so I don't know how to respond to you, but privately I'm sure they are very well aware of it. मेरी अगर आप गैरिजन स्टेट पढ़ें तो उसमें एयर मार्शल नूर खान वो कहते हैं कि they started this thing in Kashmir 65 war without informing the Air Force, and when this war started, so I wanted to resign because we had been taken you know completely off guard, but then I thought कि if I resign the nation would be demoralized. So उसका ना 2005 में डॉन में पूरी एडमिशन है कि how they were let down by the Pakistan, not the generals in generally, but there was a clique. Zulfikar Ali Bhutto, foreign minister, um, foreign secretary Aziz Ahmed, and Major General Akhtar Hussain Malik. They three did this plan, Gibraltar or वो Grand Slam, which proved to be a total failure for different reasons. और कारगिल अब देखे ना वहां पे भी पाकिस्तान had to face a lot of embarrassment, but if you read Musharraf, he says कि हम तो जीत रहे थे, we had the advantage. ये नवाज शरीफ है who got cold feet और जाके वो बिल क्लिंटन की बात मान गया, तो उनकी they have never publicly acknowledged that they in a fair battle have been defeated. समझ गए आप? But the facts speak for themselves. वो अपनी जगह है. इस्लाम भाई मेरा सवाल यह है कि आपने रिसर्च किया, जी आप हिंदुस्तान में पार्टीशन के टाइम पे जो लिखा हुआ है उसको कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने कुछ सच्चाई बयान की है? मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा जो आपने आपने कोट किया। अम, अम, जो हमारे मिट्टी के सनम कृष्णचंद्र ने लिखा, ख़ास तरीके से मिट्टी के सनम और उनके उनके फ़िक्शन में आया है, उसको किस तरह देखते हैं आप? आप फिक्शन की बात कर रहे हैं या एकेडमिक रिसर्च की? नहीं, दोनों बातें आती हैं, जो लिखा गया जी इंडिया में उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी में लिखा गया जी और फ़िक्शन सहित, उसको कैसे देखते हैं? कृष्ण सिंह क्या? कृष्णचंद्र। फिक्शन फिक्शन हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ जी. देखिए फिक्शन में तो मैंने कहा है कि फिक्शन में जो पार्टीशन का वो बर्बरियत थी और उसके अंदर जहाँ इंसानियत थी, वो दोनों शक्लें हमारे फिक्शन में तो मौजूद हैं. आप कोई भी बड़ा नाम ले दे, स्वाय कुछ लोगों ने कोई एक डिस्टॉर्टेड, जिस तरह के वो नसीम इजाजी थे एक पाकिस्तानी राइटर, उनकी किताबें हैं आग का दरिया, नहीं नहीं आग का दरिया नहीं, एक और इस किस्म की है, बट ही इज नॉट कंसिडर्ड राइटर ऑफ एनी ग्रेट क्वालिटी. जब बड़े नाम आप लें तो वो सब पार्टीशन के उस हॉरर्स को उन्होंने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है, और वहाँ से मैं समझता हूँ ये हमेशा आने वाले वक्तों के लिए फिक्शन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर का. उसकी वजह है कि हुकूमतें इस पे चुप रहीं. ईस्ट पंजाब की हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट के बगैर यहाँ के 6 मिलियन मुसलमान यहाँ से ना भागते, और हमारी तरफ से 5.4 मिलियन हिंदू और सिख टू द लास्ट मैन कभी अपना घर ना छोड़ते. दिस इज नॉट इन द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स. सारी उम्र लगा के लोग एक घर बनाते हैं, वहां पे उनकी सारी दुनिया बनती है. तो इनको भगाया गया दोनों तरफ से. अलबत्ता ये कहना चाहिए कि इंडिया की हुकूमत कांग्रेस की पंजाब को छोड़ दें, हर बाकी इलाके में जहां मुसलमानों पे हमले शुरू हुए उनको उन्होंने रोका, और यहाँ जो मुसलमान रहना चाहते थे वो रहे. 9.8% थे 1947 में, अब कहते हैं 14.2, कोई कहता है 15, तो यहाँ पे तो इंक्रीज किए हैं. 3 जून पार्टीशन प्लान के मुताबिक वेस्ट पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, अगर उसके मुताबिक हिंदू और सिख उसी इलाकों में रहते जो पाकिस्तान का हिस्सा बने पंजाब की पार्टीशन के बावजूद, हाँ जी, और सिंध के हिंदू वहां ही रहते, तो पाकिस्तान की
हिंदू सिख पॉपुलेशन 21% होती, लेकिन ऑलरेडी बाय दिसंबर 1947 वो 1.6 हुई, क्योंकि उन पे हमले हुए और वो वहां से भागे। तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड पार्टीशन के दौरान एज कंपेयर टू इंडिया, ईस्ट पंजाब को छोड़ के बहुत यानी डिप्लोरेबल कहना चाहिए। इधर अगर मुसलमानों ने चाहा रहना आंध्रा में या उड़ीसा में या कहीं, तो उन पे हमलों की कोई कहानी नहीं है। मेरठ में कुछ हमले हुए थे इधर उधर, बट बेसिकली ये सारे पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर हुए। और वो भी जब तक हुकूमत 48 रही उनके पास, खुदाई खिदमतगार वालों के पास तो कुछ नहीं हुआ। वो जब क्यूम खान की हुकूमत आ गई मुस्लिम लीग की, तो उन्होंने फिर हमले शुरू किए, तब वो लोग भागे हैं वहां से। सिंध के अंदर सिंधी मुसलमानों ने सिंधी हिंदुओं पे तकरीबन बिल्कुल हमले नहीं किए। वो यहाँ से जो गए हुए थे उर्दू स्पीकिंग, जिनको घर चाहिए थे, कारोबार चाहिए थे, इन्होंने हमले किए, तो वहां से फिर सिंधी हिंदू हिंदू और सिख वहां से भागे हैं। तो कैरेक्टर हर जगह का मुख्तलिफ है। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद पार्टीशन पे मेरे ख्याल से कोई ऐसी रिसर्च तो हुई नहीं दोनों मुल्कों के अंदर। रिपोर्ट्स हैं इधर से, वो कि यदि SGPC कहते हैं रिपोर्ट, हाँ, उनकी रिपोर्ट है मुस्लिम लीग या मुस्लिम अटैक ऑन हिंदूज एंड सिख्स बाय हरभजन सिंह, आई थिंक ताबिश और तालिश को एक ना है। सो जहां वो उन्होंने बताया कि किस तरह हिंदुओं पे और सिखों पे हमले मुसलमानों ने किए। एक और है जस्टिस GD खोसला की स्टर्न रेकनिंग। इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से दो रिपोर्ट CID की हैं। एक है द सिख प्लान और एक है RSS इन एक्शन इन पंजाब। ये हैं उस जमाने की गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, या आप कह सकते हैं पब्लिक बॉडीज, SGPC की या जस्टिस खोसला को दी गई थी। इसके अलावा दोनों तरफ रिसर्च को इनकरेज नहीं किया गया, क्योंकि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस और ये, वो सारे फंस गए उसके अंदर। तो आज तक कभी केस भी नहीं किसी पे चला कि जिसने यहाँ पे मैस मर्डर किया, ये किया। ये वो वाहिद ट्रेजेडी है जिसका आज तक कोई कोर्ट केस नहीं हुआ कि कौन कितना जिम्मेदार था। इतना मैं कहने को तैयार हूं कि ये बकवास है कि नेहरू ने या गांधी ने पार्टीशन करवाई और जिन्ना साहब नहीं थे चाहते। जिन्ना साहब बिल्कुल पार्टीशन चाहते थे, लेकिन अंग्रेज अगर ना पार्टीशन करना चाहते तो जिन्ना साहब भी खाली हाथ रहते। आखिर में तो फैसला अंग्रेजों का था ना, और पाकिस्तान जो उन्होंने दिया वो नहीं दिया जो जिन्ना साहब मांगते थे। तो जिन्ना साहब के साथ भी हाथ हो गया और उन्होंने कहा इट्स अ मॉथ ईटन पाकिस्तान। तो अल्टीमेटली हु हैड द फाइनल डिसीजन टू मेक? इट वाज द ब्रिटिश, एंड दे डिड इट टू एनसर्कल द सोवियत यूनियन। और फिर पाकिस्तान सेंटो सिएटो का मेंबर बना 1954-59 में। डायरेक्ट मिलिट्री पैक्ट्स अमेरिका के साथ हुए, हाँ जी। लेकिन अमेरिकन्स वर नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज दे थॉट इंडिया इज द सेकुलर डेमोक्रेटिक पावर इन एशिया टू बी एन अलाय। और अमेरिकन एक्सपीरियंस इन एशिया वाज इन चाइना, जहां पे कॉमिंटेंग हार रहा था और कम्युनिस्ट जीत रहे थे। तो दे वांटेड इंडिया टू बी द लीडर, डेमोक्रेटिक लीडर। ये तो अंग्रेजों की बदमाशी है, जाते हुए उन्होंने ये तोड़ दिया। और मुसलमानों के साथ भी तो जुल्म किया ना, 1/3 मुसलमान यहाँ छोड़ दिए। 30 मार्च को 1941 को कानपुर के अंदर मुसलमानों ने घेर लिया कि भाई जहां आप पाकिस्तान बना रहे हैं, क्योंकि लाहौर रेजोल्यूशन तो 1940 मार्च में आ गया था ना, वहां तो पहले ही पाकिस्तान है। सारे चीफ मिनिस्टर इधर के मुसलमान हैं, बंगाल का भी मुसलमान है, तो हमारा क्या बनेगा? एंड आई कोट जिन्ना सिंह, आई विल मेक 2 करोड़ यानी 20 मिलियन Muslims experience martyrdom and get smashed. The word "and" get smashed in order to liberate 7 crore
फ्रॉम द परमानेंट रूल ऑफ हिंदू कांग्रेस, ये उन्होंने कहा है। तो उन्होंने, और बाद में जब पाकिस्तान बन गया, वो गवर्नर जनरल बन गए, सारा कुछ हो गया, लाखों लोग घर से बेघर हुए, बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए, औरतें रेप हुई, और वो सारे रेफ्यूजीज कैंप्स में पड़े हुए थे। तो इंडियन हाई कमिश्नर श्री प्रकाशा को जिना साहब कहते हैं कि टेल जिना, टेल नेहरू not to acquire my Bombay house because I have made brick by brick. It's very dear to me. Yeah, it should be rented out to Europeans. Yes, it should be rented out to Europeans, and I should be paid rupees 3,000 rent every month. I have quoted everything. और पाकिस्तान में मैंने जाके ये किताब लिखी है, इट्स हेरेसी टू से दिस। वो, लेकिन हम जब जज्बे में अगर एक आ जाए ना किसी के अंदर, फिर वो डरता नहीं है। हाँ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। मैंने कहा यार, आई एम 76, मेरे दोनों बेटे जवान हो गए हैं, वन डे आई हैव टू पॉप ऑफ, व्हाई नॉट इन दिस वे, ये मुझे ये दो लोग वहां बैठे हैं, लाल कमीज वाले पहले, देखिए सुनिए, अभी तक पुरुषों ने सब सवाल पूछे हैं। आई वुड लाइक सम विमेन टू प्लीज नॉट बी स्केर्ड, अपना हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, गीता है, गीता आपकी बारी, नेक्स्ट उनकी बारी, उसके बाद लेकिन आप अपना सवाल फटाफट पूछ। नहीं, पहले लाल, लाल शर्ट। And we are really running out of time. We are going to be 7 o'clock. I know. सर मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मतलब काफी सालों से यूट्यूब पे, और हाँ मैंने जी, आपकी पहली वीडियो शायद अरविंद सारंग साहब के साथ देखी। जरा ऊंची बोले, मुझे आवाज नहीं आ सर मेरे दो क्वेश्चन है कि जब पार्टीशन हो रहा था तो, और जब मर्डर्स हो रहे थे, किलिंग्स हो रही थी दोनों तरफ से, तो क्या उस वक्त फोर्सफुल कन्वर्जन भी हो रहा था एक्चुअली? और दूसरा सवाल ये है कि इंटेंसिटी ऑफ जो किलिंग है एक्चुअली वो क्या सिंध में कम थी, जो कि सिंधी मुसलमान जो पाकिस्तान में थे? बस मेरे दो ये क्वेश्चन है। इंटेंसिटी ऑफ Killings in Sindh actually, not in Punjab area. The Sindh in Pakistan actually. मैं देता है नहीं, दोबारा जरा ऊंची यार बोलो, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, कम इन फ्रंट। हाँ नहीं यार, हाँ, तो बोलो। मेरे जो दूसरा क्वेश्चन है कि जो इंटेंसिटी ऑफ किलिंग थी ना हाँ सिंध जी, में एक्चुअली, जो पाकिस्तान में है, वहां पे क्या कम थी जो पंजाब में हो रही थी एक्चुअली, जो पाकिस्तान का जो पंजाब है? नहीं ऐसे है हम्म, कि किलिंग शुरू तो उधर ही हुई है, और पहले 4 महीने उधर ही होती रही है। 2 जुलाई 1947 को पहले हमला हुआ है उन इलाकों में जो अब ईस्ट पाकिस्तान बना है, ईस्ट पंजाब बना है, हम्म, ठीक है। उससे पहले जो कुछ होता रहा, लाहौर, अमृतसर, रावलपिंडी, मुल्तान, फॉर अ शॉर्ट वाइल जलंधर में होता रहा। हाँ जी, इधर मुसलमानों पे हमले शुरू हुए हैं 2 जुलाई को। एक तो ये फर्क है, लेकिन मेरी वो यूं है कि डिप्टी कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर सारे जो हैं उस जमाने के एक ही एकेडमी में ट्रेन थे, जानते थे। तो अ, थोड़ा सा दीद लिहाज भी रहा, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी, पटियाला और इधर और उधर, वहां पे इस किस्म की कोई कनेक्शंस नहीं थे। वहां पे फिर मुसलमानों पे जो हमले हुए हैं वो बहुत हम्म। ज्यादा हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूं। डॉक्टर साहब, हाँ जी, इनका सवाल ये है हाँ, कि पंजाब के कंपैरिजन में, तुलना में हाँ। सिंध में ज्यादा। अच्छा, सिंध में, हाँ, सिंध में तो हमले बहुत कम हुए हैं। कराची के अंदर हुए हैं, और एक नवाबशाह में हमला हुआ है 1 सितंबर 1947 को एक ट्रेन पे, और फिर फरवरी या जनवरी 48 में कराची में हुआ है। ज्यादातर सिंधी हिंदू जो हैं वो अमन अमान से वहां से चले गए, क्योंकि लोकल सिंधियों ने मुसलमानों पे उन पे हमले नहीं किए। उसकी वजह ये है कि सिंध की जो सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस है ना, ये लाल शाहबाज कलंदर और ये हम्म, जुल्ले जुल्ले लाल, फॉर झूलेलाल। अ लॉन्ग टाइम आई डिडंट नो कि जुल्ले लाल एक्चुअली इज अ हिंदू हम्म, सेंट। तो वो दोनों मिल के चलते हैं। हम्म। तो सिंध में ऐसे नहीं हुआ, पंजाब में बिल्कुल और करेक्टर है उसका। आपका ये सवाल था? हाँ, ये हाँ सवाल जी, था, और दूसरा सवाल ये था सर। ये तो चलो पहले ही ठीक है, आपने ठीक समझ है। लिया। अब हाँ, गीता, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
सर मैं जो आपकी रिसर्च है और जो उसके बारे में कुछ नहीं पूछना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी इस वक़्त जैसे हमारे बहुत सारे मित्र जब पाकिस्तान जाते हैं, बिजू नेगी जी जब पाकिस्तान गए तो बिजू नेगी जी का इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। वो सारे लोग कहते हैं कि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमारे लिए इतना प्रेम, इतना स्नेह, दुकानों में बहुत सारे लोग हमको फ्री मतलब गिफ्ट के तौर पे सामान देते हैं। जी, वो जी। ये सब वहाँ पर होता है। जब पाकिस्तान से यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ हम भी कोशिश करते हैं कि हम बहुत प्रेम और स्नेह उनको करें। अभी दोनों तरफ क्या स्थिति मैं पॉलिटिकल तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि यहाँ भी और वहाँ भी क्या स्थितियाँ हैं। लेकिन सामान्य समाज में क्या स्थितियाँ हैं और स्त्रियों के अंदर क्या स्थितियाँ हैं? देखिए, अवाम के अंदर तो जैसे आप खुद ही बता रही हैं, लोग घर ले जाते हैं, कहते हैं आपने जाना ही नहीं। खास तौर पे लेडीज को, भैन जी तुसी आ गए हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ पैसे लेना। मतलब इस किस्म का सेंटिमेंट है, छाबड़ी वाला, रिक्शे वाला। तो इसका मैं एक और तरीके से जवाब दूं आपको। 2013 में मैं बेंगलोर आईटी वालों ने मुझे बुला लिया। मेरी ये पंजाब वाली किताब छपी थी। तो मेरी तकरीर शुरू होने से पहले जैसे आपने बिठा दिया, एक यंग इंडियन गर्ल गॉट अप एंड सेड, सर व्हाई डू पाकिस्तानीज हेट अस सो मच। अब मैंने कहा यार व्हाट क्वेश्चन एंड व्हाट शुड आई डू। तो फिर मुझे ये मैंने कहा देखो, आज तक आई हैव ऑलवेज रिग्रेटेड कि पाकिस्तान का जो है ना लिटरेसी रेट बड़ा लो है। लेकिन आज मुझे खुशी है कि वो लो है, क्योंकि जो लोग उन स्कूलों में उन किताबों को नहीं पढ़े, उन वो जो हिंदू सिख चला जाए उसको घर ले जाते हैं, प्यार करते हैं। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडोक्ट्रिनेशन है पाकिस्तान के अंदर। और मेरे अगर आपने वीडियो देखे हैं तो वो रेबिडली एंटी हिंदू, एंटी इंडिया एक करते हैं, जिसके ऊपर हमारे प्रोफेसर के अजीज की किताब है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। अब मैंने देखा उसका हिंदी तर्जमा भी हो गया, आप जरूर पढ़ें। और वहाँ पे जो यानी मैं बाहर रहता हूँ, मेरे लिए कदरे आसान है ये सारा कुछ कर लेना। लोग वहां रह के हिम्मत करके ये सारी बातें करते हैं। तो स्टेट का नैरेटिव जिन्ना साहब ने कायम किया था, हमने जिन्ना साहब का हिला दिया है वो सारा कुछ, अब सारा कुछ हिल जाएगा, बेफिक्र रहे आप। हाँ जी। हाँ। Biju, I will give up my time, but that lady over there and then that gentleman who has been raising his hand. Yes, बस that's it. पहले महिला को दीजिए। प्रोफेसर साहब सत श्री अकाल ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਦ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਧਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਹੁਣ YouTube ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ बार-बार सारे करते हैं यूट्यूबर, सर हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्यों जुल्म हो रहा है। हाँ जी, सो दिस इज द स्टैंडर्ड क्वेश्चन। मैं क्या, मैनू तो देखने इस नजर ते कदरी जुल्म नहीं आया। कुड़ियां बुरके वालियां, हिजाब वालियां आम फिर रही होंदियां ने रोड ते, और रात दे 10 वजे भी तुसी उन्हां नू अकेला पाओगे। और दाढ़ी वाले मुसलमान पता लग जाता है नमाज पढ़न जा रहे ने, वो भी एक आम उन्हां दी टोर तो लग जाता है कि दे आर एट पीस, उन्हां नू कोई थ्रेटन नहीं है। लेकिन जिथे फिर झगड़े होंदे ने ते उत्थे जाहिर है ओदा तुसी मेरे तो बेहतर जानते हो कि वो भी होंदे ने। मेरी अखां नाल ते मैं कुछ नहीं देखिया। परसों मैं एक मेरे दोस्त ने डॉक्टर शमसुल इस्लाम जिन्हां दी मशहूर किताब है कि मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन, उन्होंने मेरा डिनर किया होया सी करीम इस्लामिक कल्चरल सेंटर दे विच रेस्टोरेंट है। उन्हां दी गड्डी जिहड़ी है वो ट्रैफिक जैम विच फस गई। मैं पहले पहुंच गया ते दो उत्थे मुंडे सन जिन्हां ने मैनूं पछाण लिया ते वो हैगे सन मुसलमान मेवाती। मैं कहा यार गल सुनो, इंटरव्यू दिओ लेकिन बोलना सच।
ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰਾ ਹੁਣ महल एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ लास्ट क्वेश्चन ਜੀ। सर एक छोटी सी क्यूरियोसिटी मेरी ये है कि हिस्ट्री का अब तक का शायद सबसे बड़ा सरेंडर जनरल ए की नियाजी का हुआ था, उसको पाकिस्तान में कैसे जस्टिफाई किया जाता है? जस्टिफाई तो कोई नहीं करता, उसको तो कहते हैं ये बुज़दिल था, ये है वो है। उसको तो बेचारे को महल पहले पेंशन भी रोक ली थी, फिर अब दोबारा शायद उसकी सुना है पेंशन रिस्टोर हो गई है। उसको तो बहुत बड़ा शेम वो समझते हैं। लेकिन उसकी अपनी किताब भी मैंने आई ऑलवेज गिव पीपल अ फेयर चांस टू प्रेजेंट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि मैंने याहिया खान को कहा था कि ये वेस्टर्न फ्रंट तब मार्च तक ना खोलें, मार्च में बारिशें शुरू हो जाती हैं, देन यू डू इट, और तब इंडियन आर्मी के लिए मूवमेंट जो है ना उन इलाकों में मुश्किल होगी। लेकिन उन्होंने जान के दिसंबर में कर दी, जो ड्राई सीजन है, और हमारे पास तो ना हथियार थे ना ये था। तो सरेंडर एक्चुअली ही ब्लेम्स दैट द टॉप मिलिट्री वांटेड कि ये ईस्ट पाकिस्तान हमारे उससे निकल जाए। नाउ दिस इज नियाजी डिफेंडिंग हिज डिसीजन कि मैं अपने लोग मरवा देता। किस बुनियाद पे मरवा देता जब हमें मदद ही कोई नहीं आ रही। देखे ना अप्रैल 1971 के बाद इंडिया डिड नॉट अलाउ के एयर के जरिए आर्म्स भेजी जाए, तो वो किससे लड़ते हैं? तो आई थिंक इवन नियाजीज पॉइंट ऑफ व्यू डज डिजर्व टू बी कंसिडर्ड। समझ गए आप? तो मेरी गैरिजन स्टेट किताब में ये सारा कुछ है। मैंने 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और 4 ISI के जो हेड हैं उनकी भी इंटरव्यू किए हैं। तो सबको मैंने पूरा चांस दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखने का। यहाँ पे भी आके मैंने आपके एक लेफ्टिनेंट जनरल, 2 मेजर जनरल्स एंड 1 ब्रिगेडियर, उनके भी इंटरव्यू उसी किताब के अंदर है। सो आई ट्राइड माई वेरी बेस्ट कि जितना भी हो सके हम जो उस जमाने के फैक्ट्स हैं वो पब्लिक में ले आए। तो उसको तो बुज़दिल ही कहा जाता है कि ही जस्ट केव्ड इन, ही हैड नो स्टफ लेफ्ट इन हिम, और ये और वो इस किस्म की बात है। Now I'll have to respect your age, but please don't raise your hands और कोई हाथ मत उठाए। आप एक और सरदार और एक एक को नाम दे दो, एक मेरे So, ज्यादा दे। so mine is not a question, it's just an observation. Since everyone is not familiar with Urdu, so I went to the dictionary. What does Ishtiaq mean? It means compassion. That explains the approach of Professor Ahmed. जनाब प्रोफेसर साहब, जनाब बहुत अच्छा लगा। नहीं जी, पंजाबी बोलोगे तो मैं गल करांगा। शुक्रिया। हाँ जी मैं जनाब ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ जी ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, जी ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। जी ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਤੀ तहसील हाँ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨ जी जी ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਸਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਮਿਆਲ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ जी ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਪੂਰੇ बहुत ਪਿੰਡ भाईचारा ਵਿੱਚ सी बहुत भाईचारा सी ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਮਾਲਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਤੇ 22 ਨੰਬਰ ਚੌਕੀ ਜਾਓ and for 3 nights they saved the people of our village ठीक है ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਅਸੀਂ 47 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲੈਮੈਂਟਾਊਨ ਆਏ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਂਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ जी ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਟਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਟਲ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ बहुत बहुत ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਧਮਿਆਲ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜੇ ਸੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ Thank you, sir. Thank you. Thank you. It's a wonderful, sir, to listen to you, sir. Thank you, sir. थैंक यू वेरी Unfortunately, Doon Club ने यहाँ डिनर का प्लान नहीं करा है. आपका एक कथन है कि नफरत से कोई समाज नहीं बनता, नफरत अपना विक्टिम खुद खोज लेती है. तो मुझे लगा कि मैं आज की सभा में बहुत कई बातें अनकही भी रह गई हैं. So, but let me finish this, and may I request Dr. Joshi, Doon लाइब्रेरी की कुछ पब्लिकेशंस हैं, and रतिन मित्रा की एक पेंटिंग है. बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू बहुत है वाह लवली थैंक यू सर थैंक यू तो प्रोफेसर साहब, अब देहरादून के बारे में आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि आपकी किताब यहाँ अवार्ड हुई थी, आप एक खूबसूरत याद लेके यहाँ से जाएंगे. May I now invite Nicholas? Where is Nicholas? For a vote of thanks. प्रोफेसर साहब आप आए, शुक्रगुजार हूँ. दास साहब, रवि चोपड़ा साहब, रवि शंकर साहब, सबका शुक्रगुजार हूँ. लेकिन आई एम मोस्ट ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू who turned up. All the events we're trying to have here are community events. They only happen if you come. Okay? They are by the community, for the community. So, Ishtiaq Ahmed Sahab, by that measure, you are part of our community now. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I thank all of you. Please do keep coming.
to whatever we do, big or small. It's lovely to see such a packed house. Please do keep coming for everything we do. It would be a pleasure. Thank you so much again. There's a small chai biscuit affair in the cafeteria for those who might require refreshments. Thank you so much.